Hello everyone, good morning. Let us quickly start the revision of topic number 1. So one by one I'll be discussing these questions as early as possible. So let's understand the very first question. Express, let's consider that as x, the very first question I'm talking about. Then we multiply by 10, it will be 22.18, right? Now to this equation, which is equation number 1, we have got only recurring term after the decimal. So again I need the similar equation which has got only this after the decimal. So I need to shift this point over here by 2 decimal. So to this equation number 1, I will multiply by 100. So it will become 1000x is equals to 2218.18 bar, and that will be equation number 2. So I hope you understand this, and then very clear, I have to subtract these two equations. So when I subtract it, it will be equation number 1 is subtracted from equation number 2. I get okay, so it is 100 into 10 is 1000, sorry. So this will be 990. Hope you understand that. X is equals to 2218 minus 22. So it is going to be 6 here, 1 carry, 11 minus 3 is 8. 1 carry, so 21. 2186. So x will be equal to 2186 divided by 990. If you simplify this, you may get the required answer. Okay? It's very simple, not difficult. See, in case if you are not remembering any of the concept, understand this very clearly. You understand. If you're not remembering any concept, if you're not understanding with such a speed, then what you have to do is you have to again go through these concepts from the video or from the previous work that what you have done, read it and get it done. Okay, so this might happen. It is mathematics, it might happen. So for that only we are revising it haphazardly. So any question, any place I have placed, and accordingly you have to solve it. Okay, so the reason is the same, that you should remember during the examination. चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं. रिप्रेजेंट 9.5 ऑन द नंबर लाइन. इजी है. 9.5 ड्रॉ करो. 9.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, फिर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करो उसको, एंड देन इसको बाइसेक्ट करो. यू गेट इट बाइसेक्टेड. at this from this point draw a semicircle, then at this particular point draw perpendicular. So if AB is a perpendicular, AB is equals to root of 9.5. You have to represent on the number line, so therefore on the horizontal line you have to represent, extend this line, keep the compass here at this particular point, take the distance till here and draw the arc. So mark this as root of 9.5 and your work is done. That's it. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन. वेरी इजी. रूट 3 रूट 5 वेरी वेरी सिंपल. अलग अलग करना है, लेकिन मैं दोनों क्वेश्चन देखता हूँ. 3 है, रूट 3 ड्रॉ करना है. तो यू हैव 1, of course 0 we need, right? So 0 and then 1. Then on 1 I will draw perpendicular. Here is that the root 2. 1 and 1 if I take, it is root 2. Again I'll keep the compass here, take the distance. This will be my root 2. Again on root 2 if I take a perpendicular and if I join this, I'm going to get root 3. Clear? So whatever I have to work on the previous number. So root 3 if I have to draw, see, if I have to draw root 3, then on root 2 and 1 I have to construct. Then next one, root 5 if I want, so I will construct root 4 and 1. Right angle triangle with root 4 and 1. Root 4 तो मुझे पता है, it's very simple. The fourth one is very simple. Root 4 is 2. So I'll go for 0, 1 with equal distance 2. ठीक है, perpendicular on 2 and the 1 here, the 1 unit taking distance from here, this will be root 5. Okay, if I want root 5, it is root 4 and 1. We know that, isn't it? It's simple as that. चलो आगे बढ़ते हैं. Very simple. Simplify is easy, not difficult. You have to actually, fifth one, 50 को फैक्टराइज करना है, then 98 को फैक्टराइज करना है, and we have to factorize 162.
ठीक है, तो फैक्टर्स करके इसको मिक्सड में कन्वर्ट करना है. वंस यू गेट कन्वर्ट इनटू मिक्सड इट बिकम्स इजी टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, राइट. 50 is 25, so 5 root 2, 98, 49, 7 root 2 plus 162 is so 9 root 2. ठीक है, तो आई थिंक यू कैन इजीली डू दिस, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. आंसर इज 7 root 2, इज इट? यस, 7 root 2, परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. सेम वे सिंप्लीफाई, अगेन अनदर थिंग, सिंप्लीफाई करना है इसको. वी हैव आंसर द सेम वे इट इज़. देखते हैं. तो 45 को फैक्टराइज करना है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 6 क्वेश्चन. फटाफट कंप्लीट करते हैं. 45 को फैक्टराइज करना है. सो 45 इज 9 root 5, 9 3 is 27 root 5. बराबर ना, समझ में आ गया. 3 ऑलरेडी वी हैव एंड 45 इज 3 root 5. ओके, 3 3 is 9. ओ सॉरी, दिस इज वॉट इट हैपन्स इफ आई डू इट फास्ट. चलो ठीक है, तो हम लोग करते हैं. 3 into 45 is 9 into 5 minus 125 is 25 into 5. Then plus 200 is 100 into 2 and minus 50 is just now we have done 25 into 2. ठीक है, आपको फैक्टराइज करके भी ये कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. तो 9 कम्स आउट एज 3, 9 root 5, 3 into 3 9 minus 5 root 5 plus 10 root 2 minus 5 root 2. So whatever is like terms I will add. So it is 4 root 5 plus 5 root 5, 5 root 2, sorry. Okay, so that's maybe the answer. That's it. Easy था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. कमन आगे बढ़ते, फटाफट आगे बढ़ते. ये थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डिस्कस दिस बिफोर दिस एज वेल. थोड़ा सा वियर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करता हूँ आपके साथ. 5 plus 2 root 6. आई टोल्ड यू इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. ये भी दिख रहा है. तो 5 is 3 plus 2. Why 3 plus 2? Because 3 into 2 is 6. So 3 plus 2 into root 3 into root 2. This is going to be equal to root 3 the whole square plus root 2 the whole square plus 2 root 3 into root 2. I hope you remember this. And now this is going to become root 3 plus root 2 the whole square, which can cancel the square and square root. I get root 3 plus root 2. Similarly, we have root of 8 minus 2 root 15, which will be equal to 5 plus 3, right? Plus 2, sorry, minus 2 into root 5 into root 3. 5 3 is 15. So why did I take 5 and 3? You understood that. So this will be root 5 minus root 3 the whole square. Square root get cancelled. It is root 5 minus root 3. I have to add these two. So this is, sorry, this and this I have to add. Root 3 get cancelled. Root 2 plus root 5 is the required result, required answer. Simple था, कुछ ज़्यादा difficult नहीं था. ठीक है ना? I just hope you understood it. ठीक है. Question number 7 is done. Product of all that. Okay. Fine. So 2 raised to 1 by 3 into 2 raised to 1 by 4 into 32 raised to 1 by 12. Now 32, always remember रूट को पावर में कन्वर्ट करके ज़्यादा ईजी हो जाता है. 32 is 2 raised to 5, we know that. 1 by 12, remember this. 32 2 के सारे पावर्स याद रखो. 32 को नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड फैक्टर्स करके देखो. ओके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा. तो दिस विल बी 5 by 12. तो ऑल आर हैविंग 2 एज अ बेस. सो वाई, हाउ डिड आई गेट दैट कि इट इज हैविंग 2 to the power 5? बिकॉज एवरी वन इज बेस हैज़ 5, बेस इज 2. तो हियर ऑल्सो इट मस्ट बी 2's पावर. ठीक है ना? तो फटाफट करते हैं. 2 raised to 1 by 3 प्लस 1 by 4 है आई थिंक वो, प्लस 1 by 4 प्लस 5 by 12. ठीक है, ऐड कर देते हैं सबको. 12 इज़ योर मे बी एलसीएम. तो 12 इज एलसीएम. सो 4 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है ना? सो 4 plus 3 7, 7 plus 5, 12 by 12 1, 2 raised to 1. Answer is 12. That's it. Answer is 2, sorry. Okay. Is this clear? I hope you are clear with this concept. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फटाफट आगे बढ़ते हैं. कम ऑन, नेक्स्ट वन. देखो कितना फास्ट हो जाता है. इट वोंट टेक मच टाइम, आई टेल यू. ये भी इजी है 9th वाला. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कन्वर्ट करो पावर को.
तो 2 स्क्वायर है ही ऑलरेडी, √3 मतलब 1/3 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो 2 1/6 और 6√2, ये भी हो सकता है आंसर। फिनिश, दैट्स इट। तो चलो फटाफट कर दो, कंप्लीट कर दो। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लगता डिफिकल्ट है लेकिन है नहीं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, ये हमने किया भी था, आपके वर्कशीट में ये क्वेश्चन है। 256 इंटू 256 0.09। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन है बहुत सिंपल। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ नहीं, बेस सेम है तो ऐड करो। तो 256 दिस प्लस दिस मतलब 0.16 प्लस 0.09, तो ये 0.25 हो जाएगा, देख लो। तो 0.25। अभी ये कन्फ्यूजन है कि 0.25 तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 256 इज इक्वल टू 25/100। 25/100 कितना होता है? 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, मतलब फोर्थ रूट ऑफ 256। फोर्थ रूट ऑफ 256 कैसे कर सकते हैं? तो 256 को फैक्टराइज करो, तो कैसे भी करो, 4 से करो, 3 से करो, 2 से करो, जैसे भी हो आप करो, एंड उसका फोर्थ पावर फाइंड करो, तो ये हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4। तो 4 इज इक्वल टू 256 आता है, विच कैन बी इक्वल टू 1/4, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ मुझे, वो भी मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। बस डाउट जो भी हो, जिस भी कैटेगरी का डाउट हो, यू कैन आस्क मी। ठीक है, बस सॉल्व करते जाना, बिल्कुल भी लेजीनेस न मत दिखाना, लेथार्जिक एटीट्यूड नहीं चलेगा मैथ्स में। चलो आगे बढ़ते। 11th क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो कितना फटाफट हो रहा है। 7 इज 81 × 1/4 प्लस 256 1/4। अभी भी आपने अगर शुरू नहीं किया है तो खुद से करना शुरू कर सकते हो आप लोग। चलो फटाफट करना शुरू करो। ठीक है, तो 7 81 का 1/4 मतलब 81 किसका फोर्थ पावर है? मुझे लगता है 3 का ही होगा। हाँ, 3 का फोर्थ पावर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 4 1/4 ठीक है, तो ये हो गया 7 1/4, 7 इंटू 7 1/4 तो ये एडिशन हो सकता है 7 5/4 ये मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 5 इज योर आंसर एंड विच इज़ हियर। तो देखो कितना इजी है इजी, बहुत इजी है। कमन फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ये देखो नेक्स्ट वन 81 इवेल्युएट करना है, कैलकुलेट वैल्यू करना है, मतलब पूरा फाइंड करना होगा। (-1/2 (-1/4 सबका पावर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 81 (1/2) इंटू 1/4 इंटू 2। अब बोलोगे माइनस कहाँ गया? चला गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 2 गेट कैंसिल। 1/4 ऑफ 81 का 1/4 पावर 3, पता है मुझे 3 का पावर 4 इज 81। ठीक है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। कमन फटाफट कंप्लीट करो। देखो नेक्स्ट वन 13 क्वेश्चन, सभी एक्सपोनेंट के इजी क्वेश्चन है। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27 (-3/2). तो ये हो जाएगा मुझे लगता है 27 28 प्लस 8 36 (-3/2). तो 1/36 (3/2). ठीक है, अभी ये कैसे करेंगे? तो पहले ये जो फ्रैक्शन नीचे दिखा हुआ है उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो 6 स्क्वायर 3/2, मतलब जो भी फ्रैक्शन है वो इसका ये पावर होना चाहिए। 36 शुड बी द पावर विथ 2, तो इट इज़ 6 टू द पावर 2, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 1/6 (3), तो 1/216, 6 का क्यूब 216। ईजी है, कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया? आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड दैट। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी हमने किया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं। (x⁻ab - ac मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ BA - BC डिवाइडेड बाय (x⁻bc अपॉन (x⁻ac). यहाँ पे हमें प्रूव करना इक्वल टू 1, तो वैसे रखेंगे। ये हो जाएगा (x⁻ab - ac (ab प्लस bc), तो ab विल गेट कैंसिल, दैट इज अ गुड थिंग, डिवाइडेड बाय (x⁻bc - ac). डिवीजन है तो इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब क्या होगा? (x⁻bc - ac डिवाइडेड बाय (x⁻bc - ac), तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट, डन। (x⁻0) है ना, एंड द आंसर इज 1। ठीक है, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं, कम ऑन, फॉर हरी अप। हमने ये सब कुछ किया हुआ है, ये भी आपको पता होगा। ये 15th वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। (x⁻a + b × a - b) (a² - b²)
into x raised to b square minus c square into x raised to c square minus a square, and all that is equals to, if I add the numerator, x raised to 0 and the answer is 0, आंसर इज 1. ठीक है ना, समझ में आ गया. नेक्स्ट वन देखते हैं. देखो 2 रेज टू एक्स इंटू 4 रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू 2 क्यूब रेज टू 1/3 इंटू 2 रेज टू 5 रेज टू 1/5, ऐसा है. तो 2 रेज टू एक्स इंटू 4 रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा 5, सॉरी अगेन 2. ठीक है, अभी कन्फ्यूजन है. यहाँ पे एक बेस करो तो 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू 2, ऐसे हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया 2 रेज टू 2x प्लस एक्स, सो 3x इज इक्वल टू 2 रेज टू 2. तो x विल बी 3x विल बी इक्वल टू 2, x विल बी इक्वल टू 2/3. पता नहीं आंसर क्या है. यस करेक्ट, 2/3. देखा कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, बेस इक्वल किया और कुछ भी नहीं किया एंड आई गॉट द आंसर डन. ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते. ये क्वेश्चन किया हुआ है 17 वाला क्वेश्चन. ये क्या हो गया, ओके जस्ट मिनट, गिव मी जस्ट 1 मिनट. कहाँ गया वो क्वेश्चन? 17 वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे. 17 वाला क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशन बुक में. ये क्वेश्चन 100% होगा. तो देखते क्या है, फिर से मैं बताता हूँ. एक्स रेज टू ए इज इक्वल टू वाई, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये. वाई रेज टू बी इज इक्वल टू जेड एंड जेड रेज टू सी इज इक्वल टू एक्स, ऐसे दिया हुआ है. यू हैव टू प्रूव ए बी सी इज इक्वल टू 1. तो कोई भी एक इक्वेशन लो, मैंने बोला था, यू रिमेंबर दैट, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर इट और नो. कोई भी एक इक्वेशन लो, एक्स रेज टू ए इज इक्वल टू वाई, ऐसा एक इक्वेशन लिया मैंने. ठीक है, अभी करना क्या है, जो भी x जहाँ भी दिखेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जहाँ भी x दिखेगा. ठीक है, y नहीं x दिखेगा. ठीक है, तो x यहाँ पे दिख रहा है विच इज़ z रेज टू c, तो x को रिप्लेस कर दो z रेज टू c रेज टू a इज इक्वल टू y इम्प्लाइज z रेज टू ए सी इज इक्वल टू y. अभी z को रिप्लेस कर दो. व्हाट इज z इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन देखा, z इज इक्वल टू y रेज टू b, तो y रेज टू b रेज टू ए सी इज इक्वल टू y, तो y रेज टू ए बी सी इज इक्वल टू y रेज टू 1. तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू 1. ये रहा है आपका सॉल्यूशन. सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. कम ऑन हरी अप. नेक्स्ट वन फटाफट कंप्लीट कर देते. आई थिंक इतना ही है. चलो नेक्स्ट आप खुद से करो. 18 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. 19 भी हमने किया हुआ है, आपके वर्कशीट में ये क्वेश्चन है ऑलरेडी. तो और ये अभी भी मैंने सॉल्व करके भी दिखाया. तो 18 19 खुद से करो. ओके, सेम टाइप का है. 20th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. 20 को पकड़ते हैं. √2 इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ दिस वन, √2 + 1. एक गलती कर देते हैं बच्चे, ऐसे कर देते हैं 1.414 + 1. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी. रिमेंबर, इसको रैशनलाइज करना ज़रूरी है. रैशनलाइज करने के बाद ही यू कैन पुट दैट इनटू द वैल्यू. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो रैशनलाइज किया तो आई एम गोइंग टू गेट √2 - 1 अपॉन 2 - 1, तो 1 हो जाएगा. तो यही आंसर आपका. तो √2 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इट इज़ 1.414 - 1, तो इट इज़ आंसर 0.414. आंसर वहीं पे है, देख लो. यही मज़ा है मैथ्स का यही तो फन है. दिस इज़ द फन ऑफ मैथमेटिक्स. कमन हरी अप. चलो फैक्टर रैशनलाइजेशन, आई डोंट थिंक आई शुड एक्सप्लेन यू, है ना. रैशनलाइजेशन देखो 21 का देखो. रैशनलाइजेशन है 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 + 2/√3 + √5. मैंने बोला था ऑलरेडी, इसको रैशनलाइज करते हैं. 1 + √2 है, ठीक है. 1 - √2 कर सकते हैं, या फिर √2 - 1 भी कर सकते थे, कोई बात नहीं. लेकिन फिर भी जैसे है वैसे ही करते थे. 1/1 + √2 इंटू 1 - √2 इंटू 1 - √2 प्लस 1/√2 + √3 इंटू √2 - √3 प्लस 2 इंटू √3 - √5 अपॉन √3 - √5 प्लस √5 इंटू √3 - √5. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो 1 - √2 अपॉन -1 आएगा ये आंसर. 1 - 2 सेम यहाँ पे √3 -
2 माइनस रूट 3 अपॉन -1 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन -2 आएगा। ठीक है, 2 गेट कैंसिल, अगेन -1। अभी -1 को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर को देते हैं, तो इट विल बी रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। उल्टा हो गया, ऊपर वाला साइन चेंज हो गया सारे के। एंड वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो ओके। तो आंसर इज रूट 5 माइनस 1। कहाँ है आंसर? यस, रूट 5 माइनस 1 इज आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया? चलो फटाफट आगे बढ़ते, कमॉन कंप्लीट करना है वीडियो को, जल्दी कंप्लीट कर देना है। ओके, 20 सेकेंड आंसर 0 आता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है उस चीज़ को, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन हमने किया भी है। चलो ठीक है, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 हम लोग सेपरेट ये करते हैं, क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होगा एंड देन नो एरर होंगे। ठीक है ना, रूट 6 प्लस रूट 3 एंड थर्ड वन हम लोग लेंगे, माइनस लेंगे क्योंकि ये माइनस साइन दिख रहा है यहाँ पे, माइनस ऑफ 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर माइनस साइन नहीं लिया होता तो 1 2 ऐड करके फिर इसको सेपरेट करना होता, उसका साइन चेंज करना पड़ता, लेकिन अभी हम माइनस ले लिया है तो हम लोग करेंगे डायरेक्टली ऐड। तो ये हो गया रूट 2 माइनस रूट 3। तो द आंसर हियर इज रूट 12 माइनस रूट 18 अपॉन -1। ठीक, देख लो समझ में आता है क्या? इसको भी करेंगे हम लोग, रूट 6 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 3। तो मैंने इससे बोला था कि नंबर को मल्टीप्लाई मत करो, मे बी इट गेट कैंसिल विद द डिनोमिनेटर, तो सिर्फ रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 इंटू ब्रैकेट रूट 12 माइनस रूट 18, ओके, रूट 9, 3 2 6, रूट 6, ओके। एंड डिनोमिनेटर आएगा 6 माइनस 3 3, तो 3 गेट कैंसिल, ये आएगा रूट 18 माइनस रूट 12। ठीक है, नीचे देखते हैं, तो ये ऑलरेडी माइनस साइन है, तो ऊपर आएगा रूट 6 माइनस रूट 2 अपॉन 4 गेट कैंसिल, माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस रूट 18 प्लस रूट 6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा रूट 12 प्लस सॉरी माइनस रूट 6, और यहाँ पे आंसर आएगा, है सही है। तो देखो ये तीनों को अगर ऐड करो तो आंसर आता है 0, हो गया। ठीक है, बस सिस्टमेटिकली आपको लिखना है और कुछ नहीं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इजीली एंड सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं। कौन सा हो गया, 20 सेकेंड हो गया, 23 सेम है रे, सेम है, क्यों, वाई शुड आई अननेसेसरी वेस्ट माई टाइम इन 23। फिर भी आप चाहते हो तो आपको मैं दिखा देता हूँ 23rd क्वेश्चन भी। 23rd, ओके, 23rd है रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस 2, इसको करते रूट 5 माइनस 2, रूट 5 माइनस 2, तो आंसर आएगा रूट 10 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 10 सॉरी 5 माइनस 1 4 1 दैट्स इट, माइनस 2 अपॉन रूट 10 माइनस 2 रूट 2। तो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, रूट 10 प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 10 प्लस 2 रूट 2। मैंने ऑलरेडी बोला था कि 2 से मल्टीप्लाई मत करो, 2 अगर हो, नंबर हो तो मल्टीप्लाई मत करो, रूट हो तो मल्टीप्लाई करो, लेकिन नंबर हो तो मल्टीप्लाई मत करो, बिकॉज इट माइट गेट कैंसिल विद द डिनोमिनेटर। तो -2 इंटू रूट 10 प्लस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आएगा 2, 10 एंड ये इसका स्क्वायर 8 आता है, तो 2 कैंसिल, एंड ऊपर जो है वो सारे साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस रूट 10 माइनस 2 रूट 2 इज योर आंसर, ओके। एंड देन व्हाट इज लेफ्ट इज 8 upon root 2, which will be multiplied by root 2 into root 2. So the answer here is maybe 4 root 2. हो गया। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये है आपका पहला वाला टर्म, ये दूसरा वाला टर्म और ये तीसरा वाला टर्म। तो रूट 2 कैंसिल, माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 4 रूट 2 एंड 4 रूट 2 कैंसिल, हो गया, दैट्स इट। कितना ईजी, देखो बहुत सिंपल है। आप जब करते जाओगे तो थिंग्स विल बिकम ईजी। तो सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर आता है 0।
ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो। 24, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। 24 √3 + 1 इंटू 1 माइनस √12 प्लस 9/√3 प्लस √12 इंटू ब्रैकेट √3 माइनस √12। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गेट √3 माइनस √36 प्लस 1 माइनस √12 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट, नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं, नीचे आएगा -9, देख लो 3 माइनस 12 -9 बराबर है ना। -9 कैंसिल, ये साइन चेंज कर देगा, तो क्या रह गया √3 -6 बिकॉज 36 का √6 है, प्लस 1 माइनस √12, ये देखो अभी माइनस ने ऊपर दिया, माइनस √3 प्लस √12 प्लस √12, देख लो ये कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, -6 + 1 -5 हो गया, आंसर आ गया, देखो -5। ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग खुद से करोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर भी मैं रिवाइज करके दिखा रहा हूँ आपको। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर टाइप है। x इज इक्वल्स टू, देखो दो वे से हो सकता है, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2। मैंने आपको एक ईजी वे बताया था इसको सॉल्व करने का। वो ईजी वे क्या है, मतलब √x, अगर x + 1/x होता तो ईजिली कर देते हैं ना हम लोग, √x है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। तो क्या करना है, √x + 1/√x का होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर क्या आएगा, x + 2 + 1/x। आई होप रिमेंबर दिस, ये याद हो क्या, देखो ये वाला टर्म नहीं याद है तो देखो वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। तो मुझे x चाहिए, 1/x चाहिए, x तो ये है ही यहाँ पे, 1/x क्या होगा, 1/x = 1/3 माइनस 2√2। तो इसको रैशनलाइज किया तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 अपॉन 1, ऑफकोर्स करके देखो आ जाएगा। तो ऑफकोर्स ये 3 माइनस 2√2 प्लस 2 होगा, प्लस 3 + 2√2 होगा, एम आई करेक्ट। तो दिस एंड दिस ऑफकोर्स गेट कैंसिल, 3 + 3 6 + 2 9 8 सॉरी √x सॉरी प्लस 1/√x द होल स्क्वायर। अभी रूट निकालो दोनों तरफ का, तो √x + 1/√x इज इक्वल टू √8 और 2√2 इज़ योर आंसर। हो गया, काम खत्म। दूसरा वे है, वो वे कौन सा मैं आपको बस समझा देता हूँ, इफ़ यू अंडरस्टैंड इज़ गुड। ये देखो, ये इस 7th क्वेश्चन जो आपका है, 7th क्वेश्चन को जैसे हमने एक को सॉल्व किया था वैसे उसको सॉल्व करो और फिर गेट इट डन। बट ये जो मैंने अभी बताया वो ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू दैट वे। हाँ, एक 26 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मैं मैक्सिमम आपको आंसर बता देता हूँ, पता नहीं याद नहीं आ रहा आंसर क्या है उसका, लेकिन फिर भी ट्राई करो, खुद से कंप्लीट करो, उसको रैशनलाइज करो, √10 की वैल्यू पुट करो, फिनिश्ड, दैट्स इट। यू कैन कंप्लीट ऑल द 26 क्वेश्चन नाउ। ठीक है ना, डन। ओके, ऑलमोस्ट ईच कॉन्सेप्ट इज रिवाइज विद इन द सिंगल पेज। इस एक पेज में आपका सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको याद नहीं होगा। सबका ऐसे होता है, आपका ही नहीं होता है, सबका ऐसे होता है। तो फिर से क्या करो, आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, रिवाइज करो। क्योंकि ये रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो आता है वही करे। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो नहीं आता उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, या फिर हमें समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली वी डोंट नो। ओके, नॉर्मली आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग दिस। मैं भी जब छोटा था तब यही करता था कि जो आता है वो करते रहने का। हाँ, जो आता है अभी, हाँ ये इजी लगता है, ये अच्छा है ना, हाँ करते रहो, वही करते रहो। इट्स नॉट कॉल्ड एज रिविजन, वो रिविजन नहीं है। रिविजन वो है जो आप लोग नहीं आता है उसको ढूंढे, उसको सर्च करें एंड देन सॉल्व इट। फाइन, सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। रिवाइज इट मीन्स रीलर्न इट। ओके, सो फर्स्ट टाइम वी आर रिवाइजिंग, लेट अस रिवाइज इट प्रॉपरली। ओके, आज वीडियो देखो, अगर आपने कल कुछ क्वेश्चंस को मिस किया है या फिर कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए उसको सॉल्व करो, एंड कल के लिए तैयारी करो। आपका जो कल का दिन है, कल के जो क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं मैंने, आई हैव सेंट इट, तो उसकी प्रैक्टिस करो और वीडियो को देख के उसके बाद डाउट भी सेंड करो इफ़ यू हैव एनी। ओके, सो सी दैट